योर सिलेबस, तो आपको बाय 2 भी आ सकती है, बाय 3 भी आ सकती है, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 7, आपको यहाँ पर काउंटिंग आ सकती है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दैट. ओके, नाउ मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Ma'am, there is echo from your side. From my side, okay. Now it's fine. Okay. Yes, but a student with the idea of आज हम नीचे से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स को लेना. योगिता वर्मा, student with the ID of Yogita Verma. Beta, please unmute yourself and tell me from where we will start. First of all, read the statement. What is the statement? Beta, you people will unmute yourself within 1 minute. Don't take too much time so that all can get the turn. Skip counting by 7. Very good, right? Skip counting by 7. Okay, beta, tell me जब हम by 7 लिखते हैं, something is when by 7 counting is there, तो हम कितने नंबर स्किप करते हैं? Can you tell me? 7. 7 नंबर स्किप करते हैं. By 7 तो आपने लिखनी है 6 numbers. Yes. So what will be the first number? Please tell me. 1088. 100. 88. Very good. 1000. 188. ये 100 है. 1000. Okay, ma'am. Ma'am, side by side, please show the slides because. Okay. The first number is 1088. Okay. Next student with the ID of Tanveer Kaur. तनवीर कौर जी की आईडी से जो बच्चा, बेटा म्यूट योरसेल्फ जो आंसर दे देता है. तनवीर कौर बेटा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? व्हाट इज योर नेम? टेल मी योर नेम फर्स्ट. 1095. 1095. 1095. Okay, very quick. Okay, ma'am, show the next answer, please. Is she right or wrong? Yes, right. Next student with the ID of Tagar Boys, that is Fatehdeep. Fatehdeep, what will be the next number? उसके बाद Swaranjit Shah. Fatehdeep, tell me the next number. Yes. 100. 100? Is it 100? 100 वाली सीरीज चल रही है बेटा? Ma'am? Yes. बेटा 4 डिजिट्स आर देयर, तो जब 4 डिजिट होते हैं तो कौन सी सीरीज होती है वो? First of all, switch on your video. I can't see your face. Switch on your video and switch on your mic also. Now tell the answer. 1095 के बाद आपने 6 नंबर स्किप करने हैं. काउंट करो 6 नंबर्स और 7th वाला नंबर लिखोगे आप. 95 से आगे कंटिन्यू करो. काउंटिंग करो बेटा. 101. हाँ मैम, व्हाट बेटा 1000 वाली सीरीज है. अब ये देखो ना, 5 जो है वो 1s प्लेस पे है, 9 10s प्लेस पे है, 0 100 प्लेस पे है और 1 जो है वो 1000 प्लेस पे है. तो आप 100 नहीं बोलोगे, 1000 बोलोगे. 1000 काउंट, फिंगर्स ओपन करो, लुक एट मी. 1096. नेक्स्ट 1097. 1098. 1099. 1000. 1000. 100. 500. 501. Yes, 1101. और नंबर क्या आएगा? 7th नंबर क्या आएगा? 1100.
Two. 1002. So we will write here. Raman ma'am, please. So this will be the next number, right? You have to continue in your mind. Counting करनी है अपने mind में. Continuation में, right? Next student स्वरंजीत शाह बेटा. स्वरंजीत शाह की आईडी से जो बच्चा है. Yes बेटा, what will be the next number? If you have any problem, you can count the fingers so that I can come to know that you have learned the concept. 1000. On your video, switch on your video. Switch on your video. 1000. Yes. 109. Yes. अपने आंसर ही बोल दिया. Okay. Ma'am, please show the answer. Next student सुम्मी अरोड़ा जी की आईडी से 1109 के आफ्टर क्या आएगा? Good morning. Good morning. Good morning. Yes, beta, tell me the answer. What will be the next answer? It's better if you will continue counting. 9. Counting the answer. 1109 is there on the screen. What will be the next number now? 1100. But I'm not. I can't hear you. Your voice is not audible. Can you write your answer in the chat box? 1000. Yes. What he is speaking, can you listen, Aman ma'am? No, ma'am, it's not clear. Okay, beta, open your finger. Loudly. हम लाइट नहीं आपकी साइड से ना आवाज कट रही है. Actually, your voice is breaking. Answer. Yes. 1110. Ma'am, ask me to write in the chat box. Beta, write your answer. Students are giving correct answer otherwise. Yes, very good. 16. Yes, ma'am. Aman ma'am. Next student with the ID of Suman Bagania. Let us speak the Yes. next answer. Ma'am. Yes. Okay, ma'am. 1070, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1123. Very good. 1123 will be the next number. Yes, Raman ma'am. Okay. Tanav Agarwal. तनव बेटा इसके आगे नंबर क्या आएगा? हम इसके आगे कुछ लिखेंगे? इसके आगे नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम बेटे? I want answer from the Tanav Agarwal. Yes, ma'am. नंबर लिखेंगे? कौन सा नंबर लिखेंगे लास्ट? नेक्स्ट मैम किसके वाले आगे से 1123 से नेक्स्ट क्या आएगा? 1030. ऊपर हेडिंग देखो, हमने कहाँ से लेके कहाँ तक लिखनी थी? स्किप काउंटिंग फर्स्ट नंबर बाय 7 तो स्टार्टिंग क्या था? 88 1088 और लास्ट नंबर क्या था? 1123. वो तो लिख लिया ना हमने, तो इसके आगे कुछ आएगा फिर? नो. फिर आप नेक्स्ट नंबर क्यों बोल रहे हो? यू हैव टू सी ना कि आपको लास्ट नंबर मिल गया है,
उसके बाद you have to stop writing. तो आप your answer should be no ma'am. We will not write next number here. Okay? Okay ma'am, show the next slide please. Don't unmute. Don't unmute, Tanav. Tell me the next number here. Now you have to write the skip counting by 1100. yes. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Very good. 1140. Very good. Mute yourself now. Sukh Somal. Sukh Somal. Please unmute, beta. Sukh Somal, beta, are you there? Janisha. Yes, beta, what will be the next number? Janisha, beta, speak the next number. You are unmute. Janisha. Your voice is not audible to me. Are you speaking? Beta, please write your answer in the chat box otherwise. Bishti. Yes, 1000. Very good. 1146. Ma'am, please. Shikha Bansal ji ki ID se Bishti. Speak the next answer. Next, Seerat. पहले Bishti की turn है. After that, Seerat. Yes, beta. What will be the next number? नेक्स्ट 1146 नेक्स्ट बोलो फटाफट करो बेटा Counting करो बेटे. 46 के आगे. No need to think. Just counting. Start करो. 1100. 1100. 1100. Yes. 47, 1140. 40. Yes. 140. Yes. चलो आगे आगे चलो चलो फास्ट फास्ट 1000 बेटा क्यों पजल क्यों हो रहा है पजल नहीं होना है ओके 1146 से करो आप 47 47, 48, 49, 50, 51, 52. कौन सा नंबर आया? 1102. Yes. 52. Very good. बेटा don't get confused. Be confident. मैंने आज आपको थॉट में यही समझाया है ना. मैं If you- पजल बोल रही हूँ करने में बहुत पजल हो रही है कि मैं क्या बोलूं Ma'am, that's why I am saying ना be confident, believe in yourself. First of all, अगर बच्चे को खुद पे believe होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने ये लिखना है, ये बोलना है, then only they can give the right answer. Okay, ma'am, please mute yourself. Next, बेटा सीरत, सीरत सीमा जी की ID से. सीरत, Yes, tell me the next number, बेटा. 1158. Very good. 1158. संजीव कुमार जी की ID से next student. Yes, बेटा. Next number. Ma'am, 1164. Very good. 1164. Sangeeta Batra. Next number. Ma'am, 1164. वो तो लिख दिया. उससे next आएगा कुछ. संगीता बत्रा जी की ID से वो बच्चा बताएगा मुझे. No, बेटा ma'am. mute yourself. Okay, very good. आगे कुछ भी नहीं आएगा because हमारे पास जो लास्ट नंबर था
We have written that. Now beta, this is, ma'am please don't, dosing lines you have to write. नेक्स्ट इज द डॉजिंग लाइन. बेटा इसकी जो आपने मेरे को अपनी नोटबुक लो और जल्दी से डॉजिंग लाइन लिखनी स्टार्ट करो और उसकी पिक आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगी. जल्दी से सभी स्टूडेंट्स शुरू हो जाओ. आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग फ्री. स्टार्ट राइटिंग डॉजिंग लाइन. Manpreet ma'am, there is one correction. It should be 1118. 1118 is there, ma'am? No, one extra one is there. Oh, it's okay. No, ma'am, bracket is there. No, ma'am, it's Yeah, fine. Yeah, it's fine, ma'am. Sorry. It's okay, it's okay. Yes, बेटा जल्दी से. रमन मैम 2 स्लाइड्स आगे निकाल दोगे प्लीज, क्योंकि आंसर लास्ट स्लाइड में है. नेक्स्ट यस, इससे पहले वाली स्लाइड में नहीं, ये तो लास्ट आ गया. इससे पहले वाली मैम यही है. बस इट्स ओके. और पहले वो दूसरी थी ना आपने जब की थी. ओके बेटा प्लीज राइट फास्ट. You know why I asked you to write it on your notebooks? So that I can come to know that how many students are there whose formation is up to the mark. Because some students' formation is not correct. And this time, you will get marks for the formation also. So you have to pay attention on your formation part. And I want to check one thing, what I have guided you in the video also, that what to do before writing it. Ma'am, you can remove the slide, otherwise they will send the pic. Later on we can discuss. Shall I stop sharing then? Because there is no slide after that. Only answers are there. Yes. Okay, leave it. 2 मिनट रहने दो, बाद में मैं इनको वो चीज गाइड कर दूंगी जो मैंने बताना है, वो स्लाइड के ऊपर ही है. We can wait for 2 minutes. Google form share कर देना मैम. Okay. बेटा जो स्टूडेंट डॉजिंग लाइन लिख लेगा वो स्टूडेंट गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करेगा. ओके, और इसकी पिक मेरे को सेंड करेगा. पिक आप बाद में भी सेंड कर सकते हो अपने ईवीएस के वर्क के बाद. नो प्रॉब्लम इज देयर. स्टूडेंट्स आर टाइपिंग इन द चैट बॉक्स. बेटा चैट बॉक्स में आपकी मेरे को फॉर्मेशन नहीं पता चलेगी. I can see many students are writing. Beta, those who have done, please do the Google form. Ma'am, Raman I have ma'am, not please shared share. it. I'll have to stop sharing first. I can't. Okay, let me share. Let me share. मोबाइल से शेयर कर देती हूँ.
बेटा एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में मेरे को भेजा है, ये आपने कॉन्टिन्यूशन में सारी लिख दी है. योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड दिस वे. आई गाइड यू हाउ टू राइट. आई हैव शेयर्ड द गूगल फॉर्म. बेटा यू कैन अटेम्प्ट इट. Beta, when you will start writing dosing line, keep in your mind that you have to write down the places, and between the two lines you have to leave two boxes at least. साथ साथ ज्वाइन करके आंसर नहीं करना. एक लाइन लिखने के बाद आपके two boxes छोड़ने हैं, two rows पूरी की पूरी. After that you will start writing the next line. Okay? I will check today how you are writing. मैम Yes, मैम गूगल फॉर्म नहीं आया. beta, I have sent. Again, I am नहीं sending. आया. Now see again, it is there in the chat box. मैंने फिर से टाइप कर दिया है. परम बेसरा बेटा आपने क्या लिखा हुआ है? मैं टाइप कर रही हूँ. Why are you typing? डॉजिंग लाइन में जो मार्क्स होंगे आपके, सपोज अगर ये 10 मार्क्स की आपको डॉजिंग लाइन आती है तो 5 मार्क्स जो हैं वो डॉजिंग लाइन लिखने के हैं, और 5 मार्क्स जो होंगे वो उसकी फॉर्मेशन के होंगे. ओके? तो जब मार्क्स आते हैं तो आपके माइंड में ये चीज होगी, तो हमने तो सारी डॉजिंग लाइन लिखी है तो हमारे मार्क्स क्यों कट गए? तो आपके मार्क्स कटवाएंगे आपकी फॉर्मेशन. अगर फॉर्मेशन अप टू द मार्क नहीं होगी, आपने डिजिट्स प्रॉपरली नहीं लिखे होंगे, सिमेट्री में नहीं होंगे, तो देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके? सो ये पार्ट आपने बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज दिस इज द पार्ट वेयर योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. अदर तो आपको कंसेप्ट आते हैं तो देन इट विल बी ओके. आपका कंसेप्ट राइट है तो यू विल गिव द राइट आंसर. टेबल्स हैं तो आपने टेबल्स, मल्टीप्लाई के सम्स के लिए टेबल्स चाहिए, टेबल डॉजिंग के लिए टेबल्स चाहिए. शेप्स के कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए. आई थिंक बाय नाउ तो ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी. ओके? ओके मैम, स्टूडेंट्स हैव डन. आई थिंक they are sharing the marks. Those who are getting 8 marks, please have a look where you have committed the mistake. Okay? It should be 10 out of 10 because now very less days are there. अब तक तो आपके full marks आने चाहिए. It means you are not reading properly. You are attempting your work in hurry. और आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, वैसे तो रजनी मैम ने कल बताया था कि आपका जो गूगल फॉर्म का फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वही कंसीडर होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने चाहे फुल सारा सही किया है तो फुल मार्क्स आएंगे. अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज आपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए और आफ्टर दैट आपने सारे क्वेश्चन आंसर राइट करके सेकंड अटेम्प्ट में किया है तो आप हमने फर्स्ट वाला ही कंसीडर करना है. सो इट मींस you have no need to submit
Google form 2-3 times. Okay, one time you will submit, that's okay. और सबमिट करने के बाद आप उसकी फोटो क्लिक कर लोगे, जो आता ना मैसेज, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, सो दैट अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना बता सके कि मैम हमने किया था, ये उसका प्रूफ है, देखो हमने सबमिट कर दिया। और आपने अपनी आईडी, अपना नेम वहां पे लिखना है। ओके, नेम की जगह पे बच्चे का नेम, बच्चे अपना नेम लिखेंगे, अपना राइट वाला रोल नंबर लिखेंगे, और सेक्शन जो आपका है, अगर आपका ग्रीन और पिंक सेक्शन है, जो बच्चे ग्रीन और पिंक के यहाँ पे हैं, वो ग्रीन और पिंक सेक्शन ही लिखेंगे। पेपर वो मॉर्निंग में देंगे, लेकिन वो अपना सेक्शन ग्रीन या पिंक जो भी है वही लिखेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो रेड ब्लू लिख दो, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा है वो। जो आपका सेक्शन है आपने वही लिखना है, नाम सही लिखना है। लास्ट टाइम एक नाम पता ही नहीं था किसी भी सेक्शन में, वो नेम नहीं था। आई डोंट नो whose Google form was there. So be careful while submitting the form. Yes, now beta, see you can see, मैंने डॉजिंग लाइन लिखी है यहाँ पे, उसके ऊपर अगर आप ये वाला पोर्शन 1, 10, 100, 1000 टेस्ट वैल्यूज लिखी है ना, इफ यू विल नॉट राइट तो योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड डायरेक्टली। 5 में से 4.5 हो गए अगर आपने ये चीज नहीं लिखी। 1, 10, 100, 1000 दोनों साइड लिखना है, और उसके बाद काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करनी है। वन रो में 10 डिजिट्स, वन रो में 10 डिजिट्स ही है ना, तो यू कैन चेक, यू कैन काउंट, दोनों रोज में 10 डिजिट्स होंगे। और सबसे बड़ी मैंने आपको रिकॉग्निशन बताई थी, इनके वंस प्लेस के नंबर देखो, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद जब रिपीटेड नंबर आया 8 तो नेक्स्ट नंबर में है, मींस वंस प्लेस के दोनों साइड के नंबर्स जो हैं वो मैच करने चाहिए। इधर वंस प्लेस पे 8 है, दूसरी साइड पे भी 8 है, इधर 9 है, इधर भी 9 है, इधर 0, 0। यू कैन सी ना, ऑल डिजिट्स आर सेम, इट मींस योर क्लोजिंग लाइन इज करेक्ट। तो जो आपको हेडिंग दिया हुआ है, कुछ बच्चे इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 1118 लिखा तो इसके नीचे 19, 20 शुरू कर देते हैं, तो आपने तो एक डिजिट लिखा ही नहीं, ये तो हेडिंग था, क्वेश्चन था जो मैम ने लिखा हुआ। आपने पहले प्लेसेस लिखनी है, उसके बाद फिर से 18 से स्टार्ट करते हुए 37 पे फिनिश करना है। फर्स्ट ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट and second number is your ending point, right? Now I will check what you have written in the work. Okay ma'am, this is from my side for today. Now your EVS work is going to be start. Ma'am, I'm going to start. Okay. Yes ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Good morning, children. Once again, I hope you have finished with your maths work, and let's start with EVS. So today we are revising the last chapter. Total आपके 6 chapters आएंगे पेपर में, आपको पता है ना? तो आज हम ये safety rules वाला chapter है, last chapter which we will revise today. So इसमें मैम next please. I'll show you some slides. ठीक है, आपने क्या करना है, उनको स्लाइड्स को देख के आपने आइडेंटिफाई करना है और आंसर देना है। फर्स्ट पिक्चर में देयर इज अ ट्रैफिक लाइट गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? तो अब इसमें क्या लिखा है मैम ने ऊपर, आई हैव रिटन लेबल द गिवन ट्रैफिक लाइट। मतलब लेबल का मतलब होता है जहां मैम ने लाइंस लगा के दी हैं आपने, वहां पे आपने लेबलिंग करनी है, ठीक है? You know that there are 3 traffic lights, red, yellow and green. So what does red light say? So number 1 में आप आंसर लिखोगे, what does red light say? Okay, Harneet, unmute yourself and tell me. Yes, ma'am. Red light says क्या आएगा number 1 में? Stop. Stop. Very good. So write down in the chat box, rest of you. Okay, very good. I can see that. Good. कुलविंदर आईआईडी से कौन है बच्चा, अनम्यूट करो बेटा।
कुलविंदर राय। ओके बेटा, आपका नेम क्या है? परम भैंस। परम, व्हाट इज द सेकंड नंबर जहाँ पे 2 लिखा है मैम ने येलो लाइट के आगे? व्हाट डज येलो लाइट से? व्हाट विल बी राइट देयर? येलो लाइट से वेट। Wait, and what are the spellings? WIAT। Think again. W. WI Hmm. WAIT। So परम, आपको मिस्टेक हो रही थी स्पेलिंग्स की ना? Someone has helped you out. किसी ने हेल्प किया आपकी, तो दैट मीन्स आपको वेट के स्पेलिंग नहीं आ रहे थे। वेट तो हम बोलते ही, आप देखो WA की साउंड पहले आ रही है तो पहले ए आएगा। इट इज सो इजी, इसको तो हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं ना। Okay, take care of spellings also. If you make spelling mistakes, your marks will be deducted for that. All right, Gurcharan, कौर आईडी से बेटा पहले तो अपनी वीडियो ऑन करिए and then you will unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ जी, आपकी वीडियो क्यों ऑफ थी? You have to keep it on. And tell me the answer for 3. थर्ड नंबर पे कौन सी लाइट है? Green। And what does green light say? Go। Go. Very good. Mute yourself. So children, this way ये हमने नोटबुक में भी किया हुआ है, आपको मैम ने एक्टिविटी भी कराई थी, in which I taught you what does red light say, what does yellow light say, and what does green light say. So I have taken this activity because हमने sense organs वाले चैप्टर में एक एक्टिविटी करी थी जहाँ पे I told you to draw the sense organs and write their function. क्लोथ्स चैप्टर में भी मैम ने आपको एक एक्टिविटी में बताया था कि यू कैन ड्रॉ एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एंड इस चैप्टर में भी हमने सेफ्टी रूल्स में भी ट्रैफिक लाइट की एक्टिविटी करी थी। तो उन एक्टिविटी के बेसिस पे भी मैम आपको कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे कि ये था। ठीक है, सो बी केयरफुल, राइट? यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो। मैम नेक्स्ट प्लीज। सो नाउ अब मैम ने क्या किया है, आई हैव शोन अ स्लाइड टू यू। एक पिक्चर है जिसके ऊपर मैंने लिखा है आइडेंटिफाई द सेफ्टी रूल। ये बच्चे कहाँ पे वॉक कर रहे हैं और ये कौन सा सेफ्टी रूल है, आपने वो मुझे बताना है। ठीक है, सुमन बगानिया आईडी, अनम्यूट बेटा, टेल योर नेम प्लीज क्विकली। Yes, ma'am. नेम प्लीज। आपकी भी वीडियो ऑफ है, एवरी टाइम मैम हैज टू रिमाइंड यू कि वीडियो ऑन रखो। व्हाट्स योर नेम? Ma'am. संचिता मैम। संचिता, ये कौन सी सेफ्टी रूल है जो मैम ने पिक्चर में शो किया है? बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, बाकी बच्चे ओनली फुटपाथ, सिर्फ फुटपाथ लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? फुटपाथ से तो मुझे क्लियर ही नहीं हुआ। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड। व्हाट वाज द फुल सेंटेंस? हमने सेफ्टी रूल सेंटेंस में किए हैं। ट्राई अगेन। We should We should walk footpath। अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक है। आपने चैट बॉक्स में तो नहीं देखा आंसर? खुद बोल रहे हो ना? No, ma'am. ओके, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, ऑन भी मिस कर दिया आपने, तो हमें फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए। व्हेन वी हैव टू वॉक, जब हम वॉक करके कहीं जा रहे हैं तो हम रोड के ऊपर वॉक नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज अ फुटपाथ फॉर दैट। ओके, दिस वाज द सेफ्टी रूल। ओके, म्यूट योरसेल्फ। संगीता बत्रा आईडी, हु इज द चाइल्ड? अनम्यूट। मैम नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी बेटा, अब आप ये पिक्चर को देखो एंड अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेफ्टी रूल। इसमें कौन सा सेफ्टी रूल हम फॉलो कर रहे हैं? Zebra crossing। आई वांट द फुल सेंटेंस। Walk on the zebra crossing। वॉक ऑन था कि कोई और वर्ड था? वॉक तो फुटपाथ पे होता है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे हम वॉक नहीं करते। क्या करते हैं? रोड को
मैम क्रॉस क्रॉस करते हैं, वीडियो ऑन करिए। यस, सो फिर से बनाओ सेंटेंस अगेन। वी शुड क्रॉस we should cross क्रॉस क्या बेटा? क्रॉस we द should cross the road we should cross the we should cross the zebra आपने crossing 5-6 टाइम्स वी शुड बोल दिया है, बट अभी तक आपका सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ। आपका अगर ओरल टेस्ट ले ले मैम, या ओरल एग्जाम हो, तो फिर देखो आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया एंड यू वर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली। दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर फॉर स्पीकिंग। We should cross at the zebra crossing और we should cross the road at the zebra crossing। ठीक है, ऐसे बोलना है। कई बच्चे सिर्फ लिख रहे हैं क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग या फिर चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग द रोड। बेटा ऐसे नहीं हम सेफ्टी रूल बताएंगे, हम बोलेंगे वी शुड, जो हमें करना चाहिए। वी शुड का मतलब हमें ऐसे करना चाहिए, वी शुड क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग, राइट। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट प्लीज। नाउ प्रिया गुप्ता आईडी। प्रिया गुप्ता, नो रिस्पॉन्स। रविकांत सियाल, बोलो, आपसे पूछ रही है मैम। रविकांत सियाल। yes ma'am बेटा I can't see you, I can see your fan only। नो रिस्पॉन्स। बेटा म्यूट योरसेल्फ, आप कोई नहीं आई थिंक। रविकांत सियाल, आई वाज कॉलिंग, हु इज द चाइल्ड? Akshita Syal, ma'am, maybe. They don't give response, children are not attentive, I don't know why। दानिशी, दानिशी, हाँ जी दानिशी, ये कौन सा सेफ्टी रूल है बच्चे? लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी, क्या सीखा था हमने इसमें? ma'am ट्राई। बाकी बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। अनन्या ने बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ जी बोलो। दानिशी स्पीक बच्चे। zebra crossing पे चलना चाहिए। Nanshi, mute yourself, beta. You are not clear and I don't think you know. Ananya, Rakesh Kumar ID. It's Tanisha, I think. Rakesh Kumar ID. yes ma'am हाँ जी बेटा, आप बताओ, आपने ठीक लिखा था चैट बॉक्स में। What is it? look to your right and left and then right before crossing the road Very good. Clap for yourself. Whenever we have to cross the road, yes, we cross from the zebra crossing, but हम ऐसे ही चलना नहीं ना स्टार्ट कर सकते। क्रॉस करने से पहले we have to look on our left, then on the right, again on the left, and then we have to cross the road if there is no traffic or no vehicle. So ये हमने करा था। Okay? अब बच्चे लिख रहे हैं। I think some of you are just copying now. जब मैम पूछते हैं तब नहीं आप बताते हो। Okay? Next, ma'am. Now this is easy one. Let's see who will answer. Sulba Singla ID. yes ma'am हाँ जी बेटा, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में आपको? कौन सा सेफ्टी रूल है which we have to follow? we shouldn't not play on the road Okay, very good. These children, they are playing on the road and this is wrong. So it says we should not play on the road or never play on the road. Both are correct. ठीक है, very good. Mute yourself.
next please. कर ले भी उनको। Now who will tell me the answer for this? Let's call Gurdeep Kaur ID. गुरदीप कौर आईडी से गुरवीर is the child. हाँ जी बेटा, अनम्यूट करिए. Good morning, ma'am. Very good morning, dear. What do we learn from this picture? Do not fly kites on the roof. Very good. These children, they are flying kite, but on the roof, which can be dangerous. They can fall. There can be accidents. So we learned from this that we should not fly kites at the roof. मतलब roof पे नहीं हमें जाके fly करनी चाहिए. If we are flying kites, we can fly it from the ground also, right? So ये सीखा था हमने इसमें. This was safety rule. गुरवीर, ये कहाँ पे follow होता था safety rule? On road या on in your house or in the school? ये कौन सा safety rule था? We have to follow it where? मैम का क्वेश्चन सुनो. ये सेफ्टी रूल वी हैव टू फॉलो ऑन द रोड पे फॉलो करते हैं या हमारे घर में फॉलो करते हैं या स्कूल में फॉलो करते हैं? In our home. Very good, in our home, because we don't fly kites on the road or we don't fly kite in the school. So इस चैप्टर में हमने स्कूल के सेफ्टी रूल्स भी किए थे, हाउस के भी किए थे, रोड के भी किए थे, बट ये सेफ्टी रूल इज फॉर आवर हाउस. वी हैव टू बी केयरफुल इन एट अ हाउस आल्सो. गुड, म्यूट योरसेल्फ. Thank you, नेक्स्ट ma'am. मैम प्लीज. ओके, संगीता बत्रा आईडी. Yes, ma'am. बच्चे आपकी टर्न आई थी अभी शायद. Yes, मैथ ma'am. मैथ्स. ओके, नॉट इन ईवीएस. ईवीएस में नहीं आई. Ma'am, आई थी. अभी आई थी. हाँ जी, आई रिमेम्बर. ओके, म्यूट योरसेल्फ. शिखा बांसल आईडी. विष्टि. विष्टि, जल्दी से अनम्यूट करते हैं बेटा. Don't want to speak? Okay, let me call someone else. Navpreet Kaur ID. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Identify the safety rule. ये कौन सा safety rule है? Do not play with switches and plugs. Very good. Clap for yourself. बिल्कुल ठीक बोला आपने. Do not play with switches and plugs. ओके, अब मुझे ये बताओ, दिस सेफ्टी रूल भी फॉलो वेयर, कहाँ पे फॉलो करते हैं हम इसको? ये कहाँ पे सीखा था हमने? Home. होम, इन आवर हाउस. देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ना जो हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते हैं. उनके स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं. So children have to be very careful that they don't touch those switches or plugs. So this is especially for our houses and for children also. Okay. Gursheen has written school also. Yes, school में तो आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते, वहाँ पे तो आपको अलाउड ही नहीं है. बट घर में कभी कभी आप शरारत करते हो, टच कर लेते हो. सो इन हाउस ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल. वेरी राइट. नेक्स्ट मैम प्लीज. हाँ जी, अब मुझे कौन बताएगा? संजीव कुमार आईडी. संजीव कुमार आईडी से कौन है बच्चा बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर. कौन सा सेफ्टी रूल है इसमें? Do not play with sharp things. Do not play with sharp things. Very good. तो हाउस में कौन कौन सी sharp things हो सकती हैं? Which all sharp things are there? Tell me any three. Scissors, knife, Yeah. scissors, knife, One more. सेफ्टी पिन्स कैन बी देयर, है ना? घर में सेफ्टी पिन्स होते हैं, नेल्स होते हैं, कील जिनको बोलते हैं हम, वो भी शार्प होते हैं. समटाइम ग्लास, ब्रोकन ग्लास होता है, वो भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है. ब्लेड्स होते हैं, कटर्स होते हैं. ओके, सो ये सब शार्प थिंग्स जो होती हैं, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड और दे आर नॉट सपोज्ड टू प्ले विद देम और यूज देम.
ठीक है, इवन इफ आपके घर में ये चीजें होती हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है, बट चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विद देम और यूज देम, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रुशीन हैज रिटन कटर, स्पेलिंग गलत हो गए, नाइफ, पिंस, ओके गुड, राइट। रोजी सैनी आईडी, रोजी सैनी, नो। सुमी अरोड़ा, आपकी टर्न आई थी बेटा। डिड यू स्पीक अर्लियर ऑल्सो? Okay, then tell me which safety rule is in this picture? ये तो बहुत इजी है, पिक्चर में देखो और जल्दी से बोलो। Where are you looking? क्या do not आगे? I think my voice is breaking. He He's is not- trying to speak. No ma'am, he is not trying properly. Come closer, आगे आओ, आगे आओ, अपने फोन के पास आओ और अच्छे से बोलो। हाँ जी, now speak properly. Do not take क्या? कितना टाइम? I don't know where are you looking, आप कहीं और देख रहे हो, आप शायद टीवी देख रहे हो, सामने टीवी लगा है आपके? हाँ, you are not listening to me, आप बोल भी नहीं रहे, आप ट्राई भी नहीं कर रहे। जल्दी, लास्ट टाइम, चलो बोलो क्या है ये? चैट बॉक्स में लिखो, चलो आई विल रीड, राइट इन द चैट बॉक्स। अभी लिखोगे आप, मैं चेक करने लगी हूँ। रोजी सैनी आईडी, हाँ जी बेटा, आपको भी मैम कॉल कर रहे थे, आई डोंट नो वेयर वर यू, नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। सुमी अरोड़ा आईडी से बेटा म्यूट करो, वेट वेट वेट, सुमी अरोड़ा आईडी म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ जी, आप बोलो। Not anything. Do not लुक take हियर, stranger. डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। ओके, अब मुझे ये बताओ, हु इज अ स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर होता कौन है? पुट डाउन योर ग्लास, आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज अ क्लास गोइंग ऑन बच्चे। नहीं जानते. मैम को बताना है, मम्मा को नहीं बताना है। Do फिर से not बोलो। take with stranger. मैडम ने पूछा है कि स्ट्रेंजर कौन होता है? Stranger जिसको हम नहीं जानते वो stranger. मैडम को बताओ। English. यस, इंग्लिश में ही बताएंगे आप। एंड लिसन टू मी, व्हाई आर यू लुकिंग एट योर मम्मा? मम्मा आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं। वेरी बैड। जिसको हम नहीं जानते वो होते हैं stranger. ओके, बट आई वांट टू हियर इट इन इंग्लिश। हु विल टेल मी इन इंग्लिश में, कौन बताएगा मुझे? राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। रोजी सैनी, म्यूट योरसेल्फ बेटा। प्रतीक्षा, यस, बताइए बच्चे। हु इज अ स्ट्रेंजर? The unknown person to us. ओके, अ पर्सन हु इज अननोन टू अस, जिसको हम नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं? अननोन। ओके, नोन पर्सन होता है जिसको हम जानते हैं, और अननोन होता है whom we don't know. वेरी गुड प्रतीक्षा। मैम नेक्स्ट प्लीज। ओके, नाउ आइडेंटिफाई दिस वन, लेट्स सी। प्रतीक्षा आप बताओ, चलो। म्यूट, आप म्यूट हो, माइक ऑन करिए। हाँ जी। Do not throw anything from other.
At others. Okay, very good. Do not throw anything at others. मतलब एक दूसरे पे कुछ नहीं फेंकना चाहिए हमें. प्रतीक्षा, where we have to follow this rule? Where do we follow this safety rule? In the Class. इन द स्कूल, इन द क्लास. वेरी गुड. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे बैठते हैं ना, आपके फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं. सो देर आर चांसेस कि आप ऐसी हरकत करो. तो दैट मीन्स दिस वी हैव टू फॉलो इन आवर स्कूल, that we don't throw anything at others. Very good, Pratiksha. Mute yourself. Ma'am, next please. ओके, अब आपने क्या करना है, सिर्फ सेफ और अनसेफ में आंसर देना है. नाउ यू विल राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स. आई विल चेक. नंबर 1 इज स्टॉपिंग एट द रेड लाइट. मतलब अगर हम रेड लाइट पे स्टॉप हो रहे हैं तो वी आर सेफ और वी आर अनसेफ. राइट डाउन and put number 1 along with your answer. Okay, Vidhan has given the answer. Very good. I am reading again. Stopping at the red light. सबने सेफ लिखा है, बिल्कुल ठीक. अगर हम रेड लाइट पे क्रॉस करते हैं या इफ वी ट्राई टू ड्राइव आवर व्हीकल देन वी कैन बी अनसेफ. तब एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं. सो दैट मीन्स इफ वी स्टॉप एट द रेड लाइट वी आर एब्सोल्युटली सेफ. वेरी गुड. मनदीप, स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं आपने. नंबर 2 पे लिखा है मैम ने गेटिंग ऑफ अ मूविंग बस. मतलब मूविंग बस कौन सी होती है, जो चल रही होती है, जो स्टॉप नहीं है. और गेटिंग ऑफ मतलब उससे अगर हम नीचे उतरे तो इज इट सेफ और अनसेफ? सब अनसेफ लिख रहे हैं 2 के आगे. वेरी राइट. टग्गर बॉयज आईडी से जो बच्चा, बेटा आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं. I don't know if you are paying attention or not. आपकी वीडियो भी ऑफ है. Switch it on. Number 3, playing with candle and matchsticks. अगर कोई बच्चा कैंडल से और मैचस्टिक से खेल रहा है, is that child safe or unsafe? रोजी सैनी आईडी से द चाइल्ड इज नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन. जब आपसे सुन भी रही थी बेटा मैं, तब भी आप नहीं बता रहे थे. अभी भी आप कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. योर हैंड शुड बी बिजी इन टाइपिंग. नो, मैम इज वॉचिंग एवरीवन. क्या कर रहे हैं आप लोग? सब अनसेफ लिख रहे हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. गुरशीन, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Yes, ma'am. गुरशीन, अभी मैंने जो रीड किया था दैट प्लेइंग विद कैंडल एंड मैचस्टिक्स है ना, इसका आंसर बच्चों ने लिखा है अनसेफ. बट ये कौन सा सेफ्टी रूल था? Ma'am, at home. नो, इसमें कौन सा सेफ्टी रूल हम फॉलो करते हैं? दैट मीन्स कौन सी चीज है कैंडल और मैचस्टिक से जिससे हमें सेफ रहना चाहिए? कैंडल और मैचस्टिक यूज करने से कौन सी चीज होती है? Fire. फायर. तो फायर का कौन सा सेफ्टी रूल था? फुल सेंटेंस में बताओ. Do not play with fire. वेरी गुड. डू नॉट प्ले विथ फायर. सो अगर हम फायर या कैंडल या मैचस्टिक्स के साथ प्ले कर रहे हैं देन वी आर अनसेफ. गुड. नेक्स्ट इज नंबर 4, जंपिंग ऑन द डेस्क्स इन क्लासरूम. जो बच्चे क्लासरूम पे जंपिंग करते हैं डेस्क पे, चेयर्स पे, आर दे सेफ और अनसेफ? एब्सोल्युटली राइट. ठीक लिख रहे हैं आंसर आप. अमनदीप ने सेफ लिखा है. बेटा आपका आंसर नंबर भी कुछ नहीं मेंशन. राइट. सो दिस इज अगेन अनसेफ. इट कैन बी डेंजरस. नंबर 5 इज टेकिंग मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स. एल्डर्स कौन होते हैं? राकेश कुमार आईडी. Yes, ma'am. एल्डर्स कौन होते हैं? Who are elders? मम्मी पापा. मम्मी पापा. ओनली मम्मी पापा. जो भी आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, आपके बड़े ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, या अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स. जो भी आपसे एज में बड़ा होता है वो होते हैं हमारे एल्डर्स. ठीक है. तो अगर आप एल्डर्स की हेल्प से मेडिसिन ले रहे हो, विल दैट बी सेफ फॉर यू और विल इट बी अनसेफ? Safe.
unsafe. Okay, mute yourself. Very good. So children cannot take medicine on their own. They have to take medicine with the help of their elders or under the guidance of their elders. ठीक है? Ma'am, next please. So these were the answers. इसमें से first वाला और last वाला safe था. Rest 3 were all unsafe. जो आपने ठीक लिखा है, कई बच्चों ने सारे 5 answers together दिए हैं. Very good. Ma'am, next. And now you have to listen. There is a situation again in front of you. Listen to it and then you will answer the questions. Anita was cycling on the road. Anita एक girl है. She was cycling. Cycling कर रही थी वो, but कहाँ कर रही थी? On the road. Road पे कर रही थी. And suddenly she fell on the road. और फिर वो गिर गई road पे. She ran crying to her mother. तो भाग के वो रोती हुई कहाँ गई? अपनी मम्मा के पास. जब आपको भी अगर आप घर पे हो तो आपको चोट लग गई, आप किसके पास जाते हैं सबसे पहले? To your mother or to your parents ना. So she also did the same. And her mother immediately provided medical help to Anita. तो उसके मम्मा जो थे उन्होंने क्या किया? जल्दी से उसको मेडिकल हेल्प, फर्स्ट एड हेल्प प्रोवाइड करी. तो अब हम आगे मैम नेक्स्ट स्लाइड करिए. अब आप ये देखो जो ट्रू एंड फॉल्स है उसके क्या आंसर होंगे. ठीक है? The immediate medical help provided to an injured person is called first aid box. Is it true or is it false? Sanjeev Kumar, ID true. Vimandeep भी true. True. Okay. गुरसीरत कौर कौन है बच्चा? बेटा अनम्यूट करिए. गुरसीरत. गुरसीरत कौर बेटा अनम्यूट करो. तो आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि सब बच्चे गलत आंसर लिख रहे हैं. सबने ट्रू लिखा है नंबर 1 का एंड दिस इज रॉन्ग आंसर. सिर्फ गुरसीरत कौर जो बच्चा था उसने फॉल्स लिखा है और उसके लिए मैम ने क्लैपिंग करवानी थी बट वो बच्चा अभी अनम्यूट नहीं कर रहा. तो क्यों गलत हुआ आपका आंसर? क्योंकि मैम ने लिखा है the immediate medical help provided to an injured person is called first aid box. बॉक्स नहीं होता, वो सिर्फ फर्स्ट एड होता है. तो बाकी सबने रॉन्ग किया है, इसीलिए मैम नहीं बोल रहे थे. अब आप फॉल्स लिख रहे हैं, दैट मीन्स पहले आपने ध्यान से सुना भी नहीं, ध्यान से पढ़ा भी नहीं. सिर्फ एक बच्चे ने ठीक आंसर लिखा था, गुरसीरत कौर. जो इमीडिएट मेडिकल हेल्प हमें. बेटा आप म्यूट करो प्लीज. नवदीप सिंह आईडी से प्लीज म्यूट. ओके. वो होता है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता. बॉक्स में हमने एक्स्ट्रा लिखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए और आप हो भी गए. ओके. नंबर 2 है वी शुड रिपोर्ट टू आवर पेरेंट्स और टीचर्स इफ समवन गेट्स हर्ट. तो इज दिस ट्रू और इज इट फॉल्स? आप देख लो, नंबर नहीं डाल रहे हो, मैम को पता ही नहीं चल रहा आप किसका आंसर लिख रहे हैं. 2 का सब ट्रू लिख रहे हैं. ओके. Let others also write, then we'll discuss. This is absolutely correct. जब अनीता को चोट लगी तो वो भाग के कहाँ गई? अपनी मम्मा के पास. ओके. क्योंकि वो हाउस में थी, अपने घर पे थी. बट अगर आपको सेम सिचुएशन स्कूल में हो जाए then you will report to your teachers, right? So this is correct statement. Number 3 is we should not give immediate first aid to an injured person. मतलब हमें इंजर्ड पर्सन को जल्दी से फर्स्ट एड नहीं देनी चाहिए. 3 का आंसर आ रहा है. ओके. बाकी बच्चे भी लिखेंगे, देन विल डिस्कस. फॉल्स. राइट, बिल्कुल ठीक है. इसमें क्या गलत लिखा है मैम ने? मैम ने नॉट वर्ड लिख दिया है जो, क्योंकि हमें फर्स्ट एड जल्दी से देनी चाहिए इंजर्ड पर्सन. ठीक है. तो फर्स्ट वन वाज false, second was true and third was again false. So I hope आपको ये चैप्टर क्लियर है. एंड टुडे वाज योर लास्ट सेशन ऑफ EVS एंड मैथ्स. कल आपकी लास्ट क्लास होगी इंग्लिश और पंजाबी की.
and उसके बाद you will start preparing for your exams. So all the best children for your exams and do well. आपको सब कुछ आता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप अच्छे से बस रिवाइज कर लोगे, your papers will go very well. Okay, so all the best to you. अगर किसी को कोई डाउट है you may ask, otherwise you may leave quietly. This is all for the day. Beta, don't forget to send your formation page. Please send me your formation page so that I can know your mistakes.